Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do weekly analysis that is from Monday to Friday, right? Not for the Bank Nifty expiry or Nifty expiry, but we are discussing weekly candles that is from Monday to Friday, which is 6th of November till 10th of November. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? यानी कल हमने क्या डिस्कस किया था आज के लिए. So we discussed that कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही गैप अप खुल जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी गैप अप खुल जाए एंड इफ इट इज एबल टू सर्वाइव एन आर्ली कैंडल अबाउट 19235 वी आर इंटरेस्टेड. यानी यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर द कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 19330 के टारगेट, राइट? दैट इज व्हाट वी डिस्कस. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी if it is able to survive above all the pumps with early green, then we are interested to take the call. यहाँ से I am interested to take the call for 43500 target. Now remember, for any call or put opportunity, what we always discuss is if I want to buy CE, right? This is the trend that I will prefer, which is what higher highs and higher lows जहाँ पे previous swing lows are not getting broken, right? This is the kind of trend I prefer for CE. Similarly for PE, how many times we have discussed कि this is the trend I am preferring for PE जहाँ पे what is there, जहाँ पे lower highs and lower lows are there, जहाँ पे swing highs are not getting broken. But what is the trend? Let it be CE or PE, right? CE हो या PE हो, this kind of trend, right? ये sideways का trend if it goes for more than 45 minutes I am avoiding. अगर ऐसा sideways का trend मिल जाए तो, if it is going this way sideways चला जाए, then this is what we are avoiding because it will eat premiums for call as well as put. And if you see this on days frame, लुक एट द कैंडल, ये है बैंक निफ्टी की कैंडल ऑन डेज फ्रेम. दिस हैज बीन प्रीवियस डे, इसके पहले भी प्रीवियस डे आफ्टर गैप अप ओपनिंग. लुक एट निफ्टीज कैंडल. लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइन एंड लुक एट निफ्टीज कैंडल. प्रीवियस डे अ डोजी, आज के दिन भी डोजी. This is the kind of candle which will always keep on eating premiums. Though the way we discussed SL, right? Though we discussed SL कि बैंक निफ्टी में ये फर्स्ट आर का लो ही था जो बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ. निफ्टी में वी हैड डिस्कस्ड कि 19180 वी विल कीप द SL, जो भी हिट नहीं हुआ. Another thing that I posted on forum, another thing, if you remember, I had posted on forum for if we see both the charts on 15 minutes ka frame. Let me just reset the chart view so it is visible clearly. What I had discussed is if you see Nifty as well as Bank Nifty on 15 minutes का frame, you may notice what I had discussed कि Nifty में 15 minutes की frame पे कल यानी कब 2 नवंबर को थर्सडे को what we saw, ये 11:15 से लेके 11:15 से लेके 11:45 से लेके 11:45 देयर वाज सेलिंग, कंसिस्टेंट सेलिंग जिसने डे लो ब्रेक किया. उसके बाद फ्रॉम 12 पीएम, राइट, 12 पीएम से लेके 1 पीएम तक, 12 पीएम से लेके 1 पीएम तक वी सॉ अ गुड पंपिंग. दिस इज व्हाट आई हैड पोस्टेड ऑन फोरम शार्प क्लोजर टू 12 पीएम, राइट? इफ यू चेक मनी कंट्रोल्स निफ्टी 50 फोरम विद माय आईडी learner171, यू मे नोटिस दिस इज व्हाट आई हैड पोस्टेड. यू मे नोटिस 11:15 से लेके 11:45 दिस वाज द टाइम वी सॉ अ गुड सेलिंग. और उसके बाद फ्रॉम 12 पीएम से लेके इन दी रेंज, ये एक छोटी रेंज के अंदर ही, फ्रॉम 12 पीएम से लेके 1 पीएम 1:15 तक वी सॉ अ कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स ऑन निफ्टी, राइट? जस्ट दिस हैपेंड इन निफ्टी, क्या नहीं, बैंक निफ्टी में भी सेम ही चीज था. 11:15 से लेके 11:45 दिस इज व्हाट द सेलिंग वी सॉ. उसके बाद 12 पीएम से लेके 1 पीएम तक दिस इज द स्टैप कंटिन्यूस पंपिंग, राइट? दिस पंपिंग कंटिन्यूड फ्रॉम लो ऑफ 42,800 से लेके till the pump of 42,950, still 150 points का pump. Similarly Nifty में भी if you see this continued from the low of 19,235, from the low of 19,235 till the high of 19,267, right? यहाँ पे भी 40-50 points का pump, a good pump. And you may notice जब ये pump आया, सी कोई प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है क्या? जैसे 12 पीएम से यहाँ पे लो क्या था 19,235, यहाँ से लेके 1 पीएम तक इट वाजंट ब्रेकिंग, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेंड्स वी प्रेफर. फिर भले इंट्राडे में एक छोटे से मूव क्यों ना हो, इंट्राडे में छोटे से मूव क्यों ना हो, विच इज नॉट ब्रेकिंग प्रीवियस स्विंग लो, राइट? कॉल के लिए और पुट भी हो तो ऐसा प्रीवियस स्विंग लो नहीं ब्रेक करे. एग्जैक्टली इफ यू सी इन बैंक निफ्टी भी, यहाँ से जब से मिला हमको बैंक निफ्टी में भी, फ्रॉम द टाइम वी गॉट हियर, जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी में भी अगर यही से देखे, ये 12 पीएम का टाइम, राइट? वेयर वाज दिस, जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी में, यस, फ्रॉम हियर जस्ट लुक एट इट. इवन इफ इट इज गोइंग साइडवेज, स्टिल दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, नॉट ब्रेकिंग द प्रीवियस स्विंग लो टिल 1 पीएम, राइट? एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी साइडवेज जाके भी, गोइंग टिल दिस वे एंड मेकिंग हैमर्स, राइट? व्हेनेवर वी सेड कि हैमर्स बनता है, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाए, देयर इज स्टिल पंपिंग. दिस वाज जस्ट एन इन बिटवीन इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, राइट? इन बिटवीन इंट्राडे अपॉर्चुनिटी. बट आई ऑल्सो मेंशन कि लास्ट आवर में इट कैन अगेन बी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? दिस इज व्हाट आई हैड पोस्टेड. दिस वाज द ओवरऑल थिंग फॉर इंट्राडे. इफ वी सी फ्राइडे का एनालिसिस ऑल्सो, राइट, फ्रॉम फ्राइडे टू फ्राइडे, बिकॉज वी डिस्कस वीकली ऑल्सो.
also. Let me take this back on weekly का frame. In Nifty especially, for Nifty I had discussed कि let me bring back all the lines. Now what I had discussed कि ये जो downward trending channel था that we are seeing from 18th of September, what we saw कि दो red उसके बाद दो green आए, वापस दो रेड आए. दैट इज द रीजन इन लास्ट फ्राइडे वी सेड दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, वी कैन सी अ ग्रीन कैंडल हैपनिंग, राइट. वी कैन सी देयर इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज से, राइट. वी डिपेंड ऑन प्राइस एक्शन, लेट इट बी प्राइस एक्शन पंपिंग को सपोर्ट करे या प्राइस एक्शन डंपिंग को. दैट इज व्हाट वी डिस्कस, राइट, कि ये हफ्ते इस फ्राइडे को एक ग्रीन कैंडल बन सकती है एंड वी कैन सी ग्रीन कैंडल. एंड व्हाट वाज द रेंज वी डिस्कस्ड, इफ यू रिमेंबर लास्ट फ्राइडे का वीडियो, इफ यू चेक व्हाट वाज द रेंज वाज 19 to 30. 19 to 30 से लेके ये जो हमें दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक वीकली का 50 SMA का सपोर्ट दिख रहा है विच इज एट 18572. इसी के अंदर 700 पॉइंट्स की रेंज रह सकती है. 700 पॉइंट्स की रेंज क्यों? इफ यू सी दिस प्रीवियस कैंडल इज ऑल्सो अबाउट 720 के रेंज में, यही कैंडल का रेंज है, राइट. एग्जैक्टली इसी के अंदर हमको ये कैंडल मिल सकती है एंड दी क्लोजिंग इज एट शार्पली एट 19 to 30, वापस इसी रेंज के अंदर, राइट. सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन ऑल्सो फॉलोज. नाउ डज दैट मीन कि ये हमेशा 100% ही फॉलो होगा? इट हैज अ गुड रेशियो, राइट. इट कैन बी फॉलोड 7 out of 10 टाइम्स और इट कैन बी फॉलोड 8 out of 10 टाइम्स. 2 या 3 बार guaranteed SL हिट होना ही है इस प्राइस एक्शन में, राइट. दैट इज हाउ वी आर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज विद एंट्री एंड एग्जिट, ऑफ कोर्स विद शार्प एंट्री, शार्प एग्जिट, SLs and targets, right. that was the overall thing. Now what about upcoming week, right? Now what about Monday से लेके Friday के लिए क्या? So if you see this Nifty का channel, right, this is now parallel channel, this I have drawn, ये parallel channel है Nifty के लिए. ये channel कब से, now look at the points it is joining, ये कब से ज्वाइन कर रहा है? दिस इज फ्रॉम 13th जून, 13 जून के लो से, 13th जून 2022 के लो से यहाँ पे इट टुक सेकंड सपोर्ट एट 28 मार्च 2023 और दिस इज अपवर्ड ट्रेंडिंग, राइट. दिस इज अपवर्ड ट्रेंडिंग. उसी तरीके से यू विल नोटिस फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 15th अगस्त को, उसके बाद इट ट्राइड टू ब्रेक दिस चैनल यहाँ पे ऑन 28th नवंबर, यहाँ से वापस नीचे गया, अगेन इट पम्प्ड अप, ये यहाँ पे 17th of जुलाई यहाँ पे एम पैटर्न करके एंड नाउ फाइनली वी आर अगेन इनसाइड ये जो पैरेलल चैनल का मिड जोन दिख रहा है, राइट. ये ब्लू लाइन जो हमें दिख रही है, इस ब्लू लाइन के नीचे हमें एक वीकली क्लोजिंग मिली है, राइट. ये ब्लू लाइन के नीचे हमें वीकली क्लोजिंग मिली है. आज भली एक वीकली ग्रीन कैंडल दिखे, राइट. लेट मी क्लोज दिस लाइन, राइट. अभी दिख रहा है, राइट. आज भली ये वीकली ग्रीन कैंडल दिखे, बट अगेन दिस ग्रीन कैंडल किसके नीचे? एक तो सबसे पहली बात जो हम 19 to 30 का रेजिस्टेंस बोल रहे थे, 19 to 30 का रेजिस्टेंस कैसे? दिस एम, राइट. दिस एम दैट इज विजिबल, ये जो एम हमको विजिबल है, दिस एम दैट इज विजिबल, इसका जो बेस है, इसका बेस है दैट इज एट 19 to 30, फर्स्ट थिंग, राइट. और सेकंड थिंग, यही ब्लू लाइन दैट वी आर डिस्कसिंग, ये दोनों लाइन के नीचे ही ये वीकली कैंडल है. इवन दो दिस इज ग्रीन, इवन दो दिस कैंडल इज ग्रीन, बट स्टिल दिस कैंडल इज अगेन बिलो. ये कैंडल फिर भी क्या, ये दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट्स के नीचे, राइट. सो अगेन इफ अ डेली कैंडल, अगर डे की कोई कैंडल एक अच्छे खासे ग्रीन के साथ, ऐसी ग्रीन प्राइस एक्शन के साथ, ऐसे ग्रीन प्राइस एक्शन के साथ, ऐसे ग्रीन प्राइस एक्शन के साथ, दिस टाइप ऑफ ग्रीन, राइट, इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन बोलेंगे क्या? नहीं. इसके बाद लुक एट द प्राइस एक्शन जा रहा कैसे है इसके बाद, राइट. तो अगर कोई डे की कैंडल वापस से ये पूरे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर विच कम्स क्लोजर टू 19323, लेट अस कंसीडर 19330, अगर 19330 के ऊपर भी क्लोजिंग देना स्टार्ट करे डे की फ्रेम पे, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, देन वी हैव अ प्रोबेबिलिटी कि वी कैन सी 19500 ऑल्सो, वी कैन सी 19630 ऑल्सो. स्टेप बाय स्टेप वी कैन गो अगेन अप, राइट. स्टेप बाय स्टेप वापस ऊपर जा सकते हैं ये 19830 के टारगेट तक. कब जा सकते हैं? अगर वापस कोई डे की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, ऐसे सारे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स बनाने लगे 19330 के ऊपर, राइट. दिस वी आर डिस्कसिंग फॉर वीकली, देन वी कैन सी कि निफ्टी वापस इतना ऊपर जा सकता है. सिमिलरली ये जो लाइन, राइट, नाउ दिस लाइन लुक्स इनकम्प्लीट क्योंकि मैंने इसे चेंज नहीं किया है, बट ऑन डेज आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस लाइन आई हैव नॉट चेंज, राइट. ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन क्यों नहीं बदली है. उसी तरीके से वापस अगर if we start getting a closing below 18900, right, not 940, 18900, this I will explain on days frame 18900 क्यों. इसके नीचे ही वापस डे की क्लोजिंग मिलने लगती है, then we can continue the weekly journey again closer to this वीकली का ही 50 SMA, राइट. वीकली का 50 SMA विच कम्स क्लोजर टू 18572, 18580, 18600 तक हम देख सकते हैं. कब? अगर 18900 के नीचे वापस डे की कैंडल रेड क्लोजिंग दे. व्हेन आई से रेड क्लोजिंग कैसे? ऐसी अच्छी खासी रेड मिल जाए, ऐसी हैमर की जैसे रेड, क्या नहीं. उसके बाद लुक एट दी प्राइस एक्शन, इट इज अगेन गोइंग साइडवेज, राइट. ऐसा प्राइस एक्शन नहीं चाहिए. ऐसी रेड क्लोजिंग अगर 18900 की मिले,
900 के नीचे मिले, राइट, डे पे ऐसी क्लोजिंग मिले, ऐसे कैंडल की तरह क्लोजिंग मिले, दिस टाइप ऑफ क्लोजिंग इफ वी गेट बिलो 18900, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसके नीचे जाए। पर तब तक के लिए क्या, राइट, दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डिकोड फ्रॉम मंडे का एनालिसिस, राइट, एंड वी विल कम ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी भी डिस्कस करेंगे। सो लेट मी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम in order to cover all the price action. Just a minute, let me just zoom in so it is clearly visible. Yes, so now coming back on hourly का frames, coming back on hourly का frames, first of all अगर हम फ्लैट खुले, राइट, फ्लैट खुले, क्योंकि now we know कि डे की कैंडल डोजी है, राइट, डोजी है, इसी रेंज के अंदर है। तो सबसे पहले अगर फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के आज का हाई, राइट, आज का हाई विच वाज क्लोजर टू 19276 के पास था, पर लेट अस कंसीडर 19280। अगर फ्लैट खुल के हम लोग 19280 ब्रेक करते हैं, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, वी आर सीइंग दिस ऑन आर्ली बट आई एम डिस्कसिंग 30 मिनट्स, राइट, आई एम डिस्कसिंग 30 मिनट्स। 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर 19280 ब्रेक हो जाता है, कैसे, ऐसे ग्रीन कैंडल्स के साथ, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ, ऐसे हैमर के जैसे, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर 19280 ब्रेक हो जाए, 19280 ब्रेक हो जाए, देन व्हाट, तो फिर जैसे यहाँ पे ये हैमर था, राइट, इसका लो कहाँ पे आता है, इट कम्स क्लोजर, ये हैमर का लो कम्स क्लोजर टू 19230 ओनली, इट कम्स क्लोजर टू 19230, यानी 50 पॉइंट्स ओनली, 50 पॉइंट्स आई विल कीप दी एसएल। अगर 19280 ब्रेक हो जाए, यहाँ से आई विल कीप दी फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, जहाँ पे ये ब्लू लाइन दिख रही है, विच कम्स क्लोजर टू 19330, राइट। लेट मी इरेज ऑल अगेन एंड रिपीट दिस। अगर मुझे निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए, राइट, 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे ओपन हो जाए, और अगर 19280 के ऊपर 19280 के ऊपर 30 मिनट्स की क्लोजिंग दे, 30 मिनट्स की कैसे, विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन, रिमेंबर स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन बोलेगे, क्या है, डोजी नहीं, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रीन। अगेन ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन के साथ अगर क्लोजिंग दे, देन दी फर्स्ट टारगेट फॉर 19330, फर्स्ट टारगेट फॉर 19330, यहाँ से आई विल कीप दी एसएल जस्ट 30 पॉइंट्स का एसएल, सॉरी, एसएल इज जस्ट ऑफ 30 पॉइंट्स, कहाँ पे, 19250 पे, ओनली 30 पॉइंट्स का एसएल, राइट, जस्ट 30 पॉइंट्स का एसएल फॉर द टारगेट ऑफ 19330। इसके पास आके भी 19330 के पास आके भी, इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 19300, राइट, इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 19300 एंड कंटिन्यूइंग पंपिंग इसके ऊपर, और इस ये जोन के ऊपर भी जाए विच इज 19350, इसके ऊपर भी सस्टेन करे, देन आई विल कीप दिस टारगेट, राइट, ये जो स्विंग हाई आ रहा है, दिस कम्स क्लोजर टू आई गेस 19430-50 के पास आता है। लेट मी जस्ट चेक इट, यस, इट इज एट 19437, देन आई विल कीप द टारगेट फॉर 19430। ये कब, अगर इसी के ऊपर 19280 के ऊपर सर्वाइव करे विदाउट ब्रेकिंग आवर फर्स्ट एसएल, राइट, एंड हिटिंग 19330 का टारगेट। इसके पास जाके भी 19300 के पास नहीं है, इसके पास आए तो कंप्लीटली एग्जिट, जितना छोटा प्रॉफिट मिल जाए उसमें कंप्लीटली एग्जिट। पर ऐसे ही ऊपर जाके अगर 19350 के ऊपर भी सर्वाइव करे, देन 19430 का टारगेट, राइट, देन दिस टारगेट 19430 का, दैट इज इफ वी ओपन फ्लैट और ऊपर जाए तो, राइट, इफ वी ओपन फ्लैट और फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो। उसी तरीके से फ्लैट खुल के नीचे जाए और अगर ये स्विंग लो ब्रेक करे, राइट, विच कम्स क्लोजर टू 19200 एंड लेट अस कंसीडर 19200, यहाँ पे आई विल नॉट बाय पी। नाउ द रीजन व्हाई आई विल नॉट बाय पी, लुक एट दिस प्रीवियस प्राइस एक्शन, राइट, यहाँ पे स्विंग लो तो ब्रेक किया, यहाँ पे स्विंग लो तो ब्रेक किया, पर पुराना जो जोन था, जहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया था, जहाँ पे ये टाइम स्पेंड किया था, ये पुराना जोन एक्टेड एट सपोर्ट, और वहां से वापस भी पम्प, राइट, वहां से वापस भी पम्प। इसीलिए इफ इट इज ब्रेकिंग 19200, राइट, 19200 ब्रेक करे तो यहाँ से 19150 कैन एक्ट एट सपोर्ट, इसलिए ये 50 पॉइंट्स पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर पुट। पर हाँ, फ्लैट खुल के नीचे है, लेट इट कम डाउन, और नीचे आके अगर इस जोन के पास से, राइट, ये पूरे जोन के पास से इफ यहाँ पे 30 मिनट्स पे ऐसा हैमर बनाए, ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन बनाए, राइट, ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन अगर मुझे 30 मिनट्स पे दिखे, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्मॉलर टारगेट ऑफ 19220, राइट, कब, अगर 19150 के पास ऐसा प्राइस एक्शन मिले, 19130 के पास, ये स्विंग के पास ऐसा ग्रीन प्राइस एक्शन हो जाए वापस किस पे, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर व्हाट, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दिस टारगेट फॉर 19220। ये कब, अगर इसके पास आ जाए तो, और यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखे तो। उसी तरीके से दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन क्या, लेट मी शो दिस अगेन ऑन डेज फ्रेम, जस्ट अ मिनट। नाउ यू कैन सी, राइट, यही डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर आज हमें ये डे की कैंडल डोजी मिली है, राइट, ये डे की कैंडल डोजी मिली है, राइट। तो वापस अभी इसी के पास आते वक्त, राइट, इसी के पास आते वक्त, लेट मी कम बैक अगेन ऑन आर्ली, जस्ट अ मिनट, लेट मी रीसेट दिस चार्ट व्यू। सो हमने फ्लैट तो डिस्कस किया, फ्लैट आके यहाँ पे आई एम सर्चिंग फॉर बाइंग का अपॉर्चुनिटी, राइट, 19150 के पास।
पर उसी तरीके से फ्लैट आ जाए या गैप डाउन आ जाए, गैप डाउन भी इसके पास आ जाए 30 मिनट्स पे ऐसी हैमर बनाए, ऐसा ही प्राइस एक्शन बनाए स्ट्रॉन्ग ग्रीन का, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन का प्राइस एक्शन बनाए, देन अगेन वहां पे कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 19,220 का टारगेट, राइट, दैट इज फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, और 30 मिनट्स पे ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे, पर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 30 मिनट्स पे अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड इफ आई सी, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर कहाँ पे 19,150 के पास आके, यहाँ पे नहीं 19,200 के पास नहीं, 19,150 के पास आके अगर 30 मिनट्स पे ऐसी कैंडल बनाई, फिर भले वो 19,100 तक आए, इट इज कंप्लीटली फाइन, राइट, यहाँ तक भी आए, पर अगर 19,150 के पास आए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट कैन कम क्लोजर टू दिस पॉइंट, राइट, इट कैन कम क्लोजर टू दिस पॉइंट विच इज क्लोजर टू 19,060, राइट, यहाँ तक आ सकता है एंड इट कैन कंटिन्यू गोइंग डाउन। ये कब है, अगर इसके पास मुझे एक रेड स्ट्रॉन्ग मिल जाए, द रेड्स दैट आई मार्क, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड इसके पास आके हैमर रेड बन जाए तो स्ट्रॉन्ग रेड है क्या, नहीं, फिर वापस इसका लो ब्रेक होना चाहिए, राइट, दिस वी आर डिस्कसिंग फॉर 30 मिनट्स, वापस कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, दिस इज डाउनवर्ड का अपॉर्चुनिटी, वी डिस्कस फ्लैट खुल के नीचे जाए इसके पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी, वापस सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी अगर रेड बन जाए तो, राइट, फ्लैट या गैप डाउन, वी डिस्कस फ्लैट खुल के ऊपर जाते वक्त, बट व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, राइट, गैप अप खुल जाए 19,230 के पास से, 19,230 के पास से अगर गैप अप खुल जाए 19,300 या 19,330 तक, अगर 19,300 से लेके 330 की रेंज पे कहीं पे भी गैप अप खुल जाए, आई विल वेट एंड सी 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन क्या होता है, राइट, अगर फर्स्ट 30 मिनट्स पे स्ट्रॉन्ग ऐसी रेड कैंडल बन जाए, ऐसी रेड कैंडल बन जाए, दिस इज स्ट्रॉन्ग रेड, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए, वापस डोजी बन जाए तो स्ट्रॉन्ग रेड है क्या, नहीं, तो वापस उसका हाई लो ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, पर अगर फर्स्ट 30 मिनट्स पे इफ आई सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग या इफ आई सी दिस काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, टिल टुडेज क्लोजिंग, उसी तरीके से अगर फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल 19,300 पे खुले और अगर ग्रीन कैंडल बना सकते, जो ग्रीन कैंडल दिस हाई, राइट, इफ इट कैन ब्रेक दिस हाई आल्सो, ये हाई ब्रेक करने का एडवांटेज क्या होगा, वी आर अबाउ दिस, वी आर अगेन अबाउ 100 SMA, वी आर अगेन अबाउ 100 SMA, जो आर्ली 100 SMA आ रहा है उसके ऊपर भी आ जाते हैं, सो वी गेट डबल सपोर्ट, राइट, वी गेट डबल सपोर्ट, इसीलिए अगर 30 मिनट्स पे इफ वी सी ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन, इज दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं है, द ग्रीन्स दैट आई मार्क, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन अगर मिल जाए किस पे 19,330 के ऊपर, राइट, 19,330 के ऊपर मिल जाए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दिस टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 19,430, राइट, विच कम्स क्लोजर टू 19,430, दैट इज व्हाट, अगर गैप अप खुल जाए तो, वी डिस्कस गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन, व्हेन विल आई कंसिडर कैरी फॉरवर्डिंग, कैरी फॉरवर्डिंग सिर्फ एक ही शर्त पे, इफ इट इज एबल टू आइदर गिव क्लोजिंग बिलो दिस जोन, आइदर ये लो के नीचे क्लोजिंग दे दे विच इज क्लोजर टू 19,065, इसके नीचे इन आर पुट का सिनेरियो, इसके नीचे क्लोजिंग दे, देन आई विल बुक आउट 70% एंड आई विल कंटिन्यू ओनली विथ 30%, ओनली विथ 30%, ये कब, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो, इन आर पुट का सिनेरियोज दैट वी डिस्कस्ड, उसी तरीके के से कॉल के सिनेरियो में जैसे फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप पे ऊपर सस्टेन करे, आई विल बी इंटरेस्टेड टू कैरी फॉरवर्ड कॉल्स only if it is able to give closing about 19,430, again with क्या, just with 30% of lot working out 70%, right, only then I will be interested to carry forward, अगर 430 के ऊपर रहे या फिर 19,060 के नीचे रहे इन आर पुट का सिनेरियो, नहीं तो इस जोन के अंदर रहे, then this entire analysis is only for Monday, उसके बाद we will again do discussion from upcoming Monday आगे के लिए, right, this is overall analysis for Nifty, उसी तरीके से व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट, एज दिस इज वीकली एनालिसिस, दिस इज वे टू लॉन्ग, बट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दी सिनेरियोज, राइट, दैट इज द रीजन, सो बैंक निफ्टी के लिए क्या, लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट व्यू जस्ट अ मिनट एंड कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स, जस्ट लाइक निफ्टी, लेट मी कम बैक हियर ऑन आर्ली का फ्रेम, ओके, सो आई एम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स, बैंक निफ्टी में भी नाउ इफ वी गेट एनी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्लैट खुलते, राइट, बैंक निफ्टी में भी जस्ट लाइक निफ्टी फ्लैट खुलते और यही जोन, राइट, ये हाई का जोन इफ वी आर एबल टू ब्रेक, जहां से आज हमने रेजिस्टेंस लिया था, राइट, ये हाई कहाँ पे आ रहा है, लेट मी चेक अगेन, दिस हाई सबसे पहले यहाँ पे आता है, इट इज सबसे पहले हियर इट इज एट 43,397 के पास है, राइट, 43,397 के पास है विच इज एट 43,400, यहाँ पे भी वी वेंट ऑल दी वे 43,410, यहाँ पे भी वी वेंट ऑल दी वे 43,416, सो लेट अस कंसिडर 43,420, इफ वी आर अगर फ्लैट खुलते और 43,420 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिले ऐसी हैमर के जैसे, ऐसे, इज दिस स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इज दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, द वे वी डिस्कस्ड फॉर निफ्टी,
ऐसे ग्रीन कैंडल्स अगर मिल जाते हैं, ऐसे ग्रीन कैंडल अगर 43,420 के ऊपर मिल जाए, देन आई विल वेट फॉर दिस फर्स्ट टारगेट, राइट, फॉर दिस फर्स्ट टारगेट विच कम्स क्लोजर टू, लेट मी चेक वेयर इज दिस फर्स्ट टारगेट, दिस टारगेट इज क्लोजर टू 43,630 का हाई, आई कंसिडर 43,620, राइट। अगर इसके ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज होती है, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर 43,620 का टारगेट, राइट, 43,620 का टारगेट। इसके पास आके भी 43,620 के पास आके भी इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग 43,580, राइट, वापस 43,580 नहीं ब्रेक करे और इसी के ऊपर जाए, देन आई विल वेट फॉर दिस 43,800 का टारगेट ऑल्सो, राइट, देन आई विल वेट फॉर 43,800 का टारगेट ऑल्सो, बट 43,580 ब्रेक हो जाए, आई विल एग्जिट कंप्लीटली कंसिडरिंग इट इंट्राडे का ट्रेड, राइट, आई विल एग्जिट कंप्लीटली यहाँ से 580 जो भी जितने भी पॉइंट्स मिल जाए, दैट इज कब, अगर 43,420 के ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिल जाए, दैट इज फ्लैट का सिनेरियो, राइट, दैट इज फ्लैट का सिनेरियो। उसी तरीके से जस्ट लाइक द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, फ्लैट खुल के अभी नीचे आई, यहाँ से एम आई इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, नहीं, यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी, पर फ्लैट खुल के इस जोन के पास आए, राइट, इस जोन के पास आए विच इज क्लोजर टू व्हाट, विच इज क्लोजर टू 43,100, 43,100 से लेके अगर 43,080 की जोन पे, 43,100 से लेके, लेट मी राइट दिस अगेन, 43,100 से लेके अगर 43,080 की जोन पे इसके पास आ जाए, फ्लैट खुल के आ जाए या गैप डाउन खुल के आ जाए, पर इसके पास अगर 30 मिनट्स पे ऐसी ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, इज दिस स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट, व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग, ऐसी ग्रीन प्राइस एक्शन मिले 30 मिनट्स पे, दिस टाइप ऑफ ग्रीन प्राइस एक्शन अगर 30 मिनट्स पे बन जाए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दिस आज का क्लोजिंग विच इज एट 43,300, राइट, टिल दिस क्लोजिंग। उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, बट इफ इट इज ब्रेकिंग दिस लो, अगर ये लो ब्रेक कर दे, राइट, विच इज दिस कम्स क्लोजर टू 43,080, नॉट 100, इफ इट इज ब्रेकिंग 43,080, राइट, अगर यहाँ पे 43,080 ब्रेक कर दे ऐसे रेड्स के साथ, राइट, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड के साथ, ऐसे ऐसे रेड्स के साथ, इफ इट इज ब्रेकिंग, इज दिस कॉल्ड ब्रेकिंग, दिस इज नॉट ब्रेकिंग, राइट, विद द रेड्स आई एम मार्किंग, ऐसे रेड के साथ अगर 43,080 ब्रेक कर दे, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर 30 मिनट्स, राइट, कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 42,800, राइट, पर अगर बड़ा गैप अप खुल जाए, राइट, कोई भी गैप अप खुल जाए विच इज क्लोजर टू 43,600, जस्ट लाइक निफ्टी, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, सी ऐसे रेड्स बन जाए, ऐसे रेड्स बन जाए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस टारगेट। उसी तरीके से गैप अप पे फर्स्ट 30 मिनट्स पे, गैप अप पे फर्स्ट 30 मिनट्स पे 43,600 तक खुल जाए और 43,600 के ऊपर 30 मिनट्स पे ऐसी कैंडल क्लोजिंग दे, इज दिस स्ट्रॉन्ग, अगेन नहीं, ऐसी कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल 40, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल 43,800 के टारगेट के लिए, राइट, 43,800 के टारगेट के लिए। उसी तरीके से गैप डाउन इस जोन तक हो जाए, राइट, 43,000 तक किसी भी जोन पे हो जाए, यहाँ पे इमीडिएटली आई विल नॉट टेक पुट, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी की ये रेंज ब्रेक हो रही है क्या, इफ दिस रेंज इज गेटिंग ब्रोकन ओनली देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी टिल 42,800, नहीं तो इफ इट इज मेकिंग फर्स्ट 30 मिनट्स पे, नहीं तो इफ इट इज मेकिंग फर्स्ट 30 मिनट्स पे ऐसा ग्रीन, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दिस टारगेट, राइट। और बैंक निफ्टी में आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कैरी फॉरवर्डिंग, राइट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी कैरी फॉरवर्डिंग, आई विल वेट फॉर मंडे एंड सी कि इधर ये रेंज ब्रेक हो जाए या ये रेंज ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल लुक फॉर एनी कैरी फॉरवर्डिंग आफ्टर मंडे का एनालिसिस, राइट। That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for the upcoming week, that is from Monday to Friday, right? So that's it for today. Thank you so much for watching this video. Have a happy weekend. See you on Monday. Thank you.